Good morning, all of you. This is Mr. Pagetitis. So, students, today we will discuss about a poem called Amanda. In this poem, we will see about a little girl, what she thinks about herself. And before entering to this lecture, just I would like to you ask a certain question. Do you want to have a freedom life? If I ask this question, so definitely your answer will be yes. Sometimes you want to live as a free life, you want to live according to your will, according to your wish. Okay, so but your parents are different from you. Sometimes they scold you not to do that, do this one. There is certain rules and regulation in the family, there is certain discipline in the family, or according to that way the family member want to lead you, but sometimes you want to live beyond of the rules and regulation of your family. Anyway, but we will discuss about the desire of Amanda, what she wants and in which way she wants to live. Let us read this poem. So, it is not necessary to read this poem. If you have just, I am scrolling and slowly you have to read it. And why? Because I am going to tell you the summary. In the summary, there will be also poem. Either if you want to read it, if you don't have any book, so just make a screenshot and you have to read this poem. Okay, so along with this reading, so I will explain by summarizing. So let us discuss the summary of this poem. First stanza. Don't bite your nails, Amanda. Don't hutch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. अमंदा को यहाँ पे उसका मदर क्या कहती है, इस स्टांजा में हम देखते हैं कि अमंदा का जो मदर है उसको स्पीकिंग कर रही है। वह कहती है अमंदा को वेरी स्ट्रिक्ट वॉइस के साथ, नाखून समय समय पर हम ऐसे चबाते हैं, ये हमारी आदत है। तो मदर यहाँ पे उसको नाखून चबाने के लिए मना करती है। उसके बाद उससे कहती है कि तुम ऐसे होकर के मत बैठना, बिल्कुल सीधा होकर के बैठना है, बिल्कुल सीधा होकर के बैठना है। Instead she wants Amanda to sit up with her back straightened. वो चाहती है कि अमंदा जो है वो बिल्कुल स्ट्राइटली बैठे और वो ऐसे मतलब झुक करके नहीं बैठे, यही चाहते हैं। तो हो सकता है कि अमंदा उसका बैठने का तरीका सही नहीं हो, वो हो सकता है कि वो ऐसे बैठ रही हो। सेकंड स्टैंजा क्या कहता है? व्हाट टेल्स द सेकंड स्टैंजा? देयर इज ए लैंग्वेज emerald sea, where the sole inhabitant is me, a mermaid drafting blissfully. In this stanza, we see Amanda's reaction to her mother correcting her on the proper way to sit. तो यहाँ पे एक रिएक्शन को हम देखते हैं कि मदर का डांट सुनने के बाद वो उसके प्रति एक रिएक्शन देती है कि बैठने के बारे में मदर जब कहती है, she withdraws from her real life to an imaginary world. वो अपनी वास्तविक दुनिया से हट कर के कुछ काल्पनिक दुनिया के बारे में सोच रही है। She imagines that is a beautiful green sea in which
Only she lives and there is nobody there to bother her. वो ऐसे एक ग्रीन सी में रहना चाहती है और जहाँ पर उसके अलावा और कोई भी नहीं हो, है ना, उसको परेशान करने के लिए, उसको टोकने के लिए, उसको बोलने के लिए। मोर ओवर शी इज़ नो लॉन्गर ए ह्यूमन बींग बट हैज़ टेकन द फॉर्म ऑफ मरमाइट। वो जलपरी के रूप में अपने आप को कल्पना करती है ना, और वो एक इंसान के रूप में कल्पना नहीं करती है। एंड इज ड्रिफ्टिंग अलॉन्ग इन ए रिलैक्स्ड फैशन विद दैट सी। और वो समुद्र में हमेशा क्या करती, एक मेरमाइट बन करके वो रहती है, उसे बोलने के लिए कोई नहीं होता। थर्ड स्टैंजा, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमंदा? डिड यू टाइडी योर रूम अमंदा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमंदा। मदर यहाँ पे रूम को क्लीन करने के लिए कहती है, शूज को क्लीन करने के लिए कहती है। अक्सर हमारा मदर भी हमें ऐसा ही कहती होगी घर पे, अपने रूम को साफ सुथरा रखो, अपने बुक्स को जमा करके रखो, अपने बैग्स को जमा करके रखो, है ना, ये सभी चीज़ें। और हमारा परिवार से भी हमको कोई कहता है, तो ठीक ऐसे ही इन दिस स्टैंजा वी अगेन हियर अमंदा's mother speaking to her. She talks on an authoritative tone like before, and asked Amanda whether she has completed the homework given to her by her teacher at school. बड़े अधिकार के साथ अपनी मदर वहाँ पे अमंदा को कहती है कि जो होमवर्क उसको स्कूल से मिला है उसने कर लिया है कि नहीं है। फॉलोइंग दिस शी आस्क्स अमंदा whether she has cleaned up her own room. क्या वो अपना रूम को साफ सुथरा करी कि नहीं, ये बारे में पूछती है। Finally she tells Amanda that she had commanded Amanda to clean her shoes, but that Amanda has not done so yet. अभी आखिरी में उसको ये पूछते हैं कि तुमने अपने शूज़ को क्लीन किया है कि नहीं, पॉलिश किया है कि नहीं, साफ किया है कि नहीं, लेकिन अभी तक वो कुछ कर ही नहीं। At this point, it is clear that Amanda's mother is both irritated and angry at Amanda. तो इसी के चलते हम ये देख सकते हैं कि अमंदा का जो मदर है इस बात को लेकर के चिढ़ जाती है और गुस्सा भी हो जाती है कि कुछ समय पहले ही उसको कहा गया था ये सब कुछ करने के लिए, लेकिन उसने नहीं किया। तो तभी फोर्थ स्टैंजा में अमंदा क्या कहती है, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हाउस्ड बैड फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। मैं एक अनाथ की तरह क्या होती, नंगे पैर घूमती इस गलियों में, इस बस्तियों में, तो साइलेंस जो है गोल्डन मेरे लिए होता और फ्रीडम मेरे लिए स्वीट होता। In this stanza, we once again see Amanda's reaction to her mother's harsh word. Amanda withdraws into another imaginary world. She imagines that she is an orphan and that she is romancing around on the street. मदर का इस बात को सुनने के बाद फिर से वो रिएक्शन प्रकट करती है और इस तरह से रिएक्शन प्रकट करती है कि काश वो एक अनाथ है और वो अभी कहाँ घूम रही है, स्ट्रीट में इधर उधर नंगे पैर में घूम रही है। शी हैज़ नो शूज ऑन हर फीट एट ऑल एंड इंस्टेड शी इज गेटिंग देम इवन डायरेक्टियर बाय मेकिंग डिजाइन्स ऑन द डस्टी ग्राउंड विद देम। शायद ही जो डस्टी ग्राउंड में वो पूरे डिजाइन फुल के साथ वो चलती। हाउ आवर शी मेक्स नो साउंड वाइल मेकिंग दिस डस्टी डिजाइन। तो जैसे वो चलती होती तो इस डस्टी में कोई भी आवाज़ नहीं होता। शी शेरिश
the silence as well as the freedom to do as she likes in that world of her imagination. वो एक इमेजिनरी दुनिया में चली जाती है और सोचती है काश वो अनाथ होती तो कितना अच्छा होता। फिफ्थ स्टैंजा, डोंट ईट द चॉकलेट अमंदा, रिमेंबर योर एक्न अमंदा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमंदा। तो अमंदा को फिर से यही कहा जाता है कि चॉकलेट ज़्यादा मत खाना, तुम्हें अपनी एक्न के बारे में सोचना है। एक जिसको हम कहते हैं टूथ एक हो सकता है, और मैं तुम्हें ही कह रही हूँ, मेरी और ध्यान दो, मेरी बात को सुनो। So in this stanza, Amanda's mother is once again telling her what to do and what not to do. जब पोएम को शुरू किया था तभी मैंने कहा था कि कुछ बात ऐसे होता है, हमें ये करना है कहते हैं और हमें वो नहीं करना है कहते। ठीक ऐसे अमंदा को भी क्या करना है क्या नहीं करना है इस बारे में कहा जाता है। She tells Amanda not to have any chocolate for they might cause her a develop acne on her face. तो अगर वो चॉकलेट ज़्यादा खाएगी तो डेफिनेटली अपनी फेस में प्रॉब्लम होगा, यही कहा जाता है। इट सीम्स दैट acne इज recurring problem for Amanda because her mother wants her to remember how they had looked on her face at some previous time, confident that she cannot have forgotten the sight so easily. तो उसको यही कहा जाता है, बीते दिनों में हो सकता है वो चॉकलेट खाई होगी और चॉकलेट खाने के द्वारा उसका मुंह में कुछ दर्द आया होगा, और मदर यहाँ पे कहती क्या तू उस दिन को भूल गई। Perhaps this unpleasant memory has made Amanda turn her face away. शायद इसलिए अपना फेस को वो दूर करती है। For her mother then tells Amanda to look at her while she is speaking as a sign of respect toward her. जब वो मदर उसे कह रही है तो उसे देखते हुए मतलब उसको जवाब देना चाहिए, अपना मुंह को नहीं छुपाना चाहिए। सिक्स स्टैंजा में एक टावर के बारे में बताया जाता है। आई एम refugel, I have not a care. Life in a tower is tranquil and rich. I will certainly never let down my bright head. So in this stanza, Amanda withdraws into her fantasy world for the last time in order to escape from her mother's ragging. इस पोएम में वो अपनी मदर से दूर भागना चाहती है। She imagines herself to be Rapunzel, एक Rapunzel में वो है ऐसा सोचती है। She imagines that she is perfectly happy to live alone in the tower. वो अकेली वो टावर में रहती तो कितना अच्छा होता। That she is thinking, for she has nothing to worry about. उसे किसी भी बारे में चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं होता। लाइफ पर देर इज़ पीसफुल एंड नॉट टू मैनी पीपल नाउ व्हाट दैट इज़ लाइक। इन फैक्ट शी इज़ सो हैप्पी विथ लाइफ दैट शी विल नेवर लेट डाउन हर हायर इन अटेम्प्ट टू एस्केप फ्रॉम द टावर। तो वो कभी भी उस टावर में होती तो बहुत खुश रहती और इस प्रकार वो सोचती है। स्टॉप दैट स्टॉकिंग एट वंस अमंदा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमंदा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमंदा। इन दिस स्टैंजा अमंदा's मदर टेल्स हर टू स्टॉप स्टॉकिंग। स्टॉकिंग करने के लिए मदर वहाँ पे मना करती है। शी ऑल्सो accuses her daughter of having mood swings very frequently. उसका जो मूड के ऊपर वो उसे दोषारोप करते हैं
Finance tells Amanda that anyone who saw her would think that her mother has been nagging at her. कोई भी देखेगा तो यही सोचेगा कि माँ उसको नैगिंग करती है, मतलब वो उसके ऊपर ध्यान नहीं देती है. It is obvious that Amanda's mother feels it is her duty to correct her daughter and to teach her proper way to behave, and she does not believe that this can be an exhausting, irritating experience for Amanda. मदर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रही है और डॉटर जो है उसको इरिटेट के रूप में लेती है. तो ऐसा होना नहीं चाहिए. तो आज का पोइम इतना ही है. तो फिर से मिलेंगे हम नेक्स्ट एक अदर वीडियो के साथ. अगर आपने क्वेश्चन आंसर नहीं किया, अगर आपके टेक्स्ट बुक से ये क्वेश्चन सारा मिलता है तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ले करके ये देख सकते हैं आप. क्वेश्चन 7, 8, 9 ये क्वेश्चन है. तो आंसर भी यहाँ पे मैं धीरे धीरे करके उसको ऊपर उठा रहा हूँ. आप उसको स्क्रीनशॉट ले करके इसे आप अपना काम पूरा कर सकते हैं. ओके, थैंक यू. माय गॉड ब्लेस यू. हैव अ गुड डे. फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ.